السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمران ہاشمی اور دشا پڑھنی کی انتظار کی جانے والی فلم آوارہ پن 2 کے بارے میں، جو 14 اگست 2026 کو سنیما گھروں میں ریلیز ہوئی اور پہلے ہی دن باکس آفس پر زبردست اوپننگ دینے میں کامیاب رہی۔ لیکن اس فلم کے لیے سب سے بڑا چیلنج صرف ناظرین کا رد عمل نہیں تھا، بلکہ اس ویکینڈ اینڈ پر سنی دیول کی بڑی فلم بٹوارہ 1947 بھی سنیما گھروں میں موجود تھی۔ یعنی ایک طرف عمران ہاشمی کی واپسی، آوارہ پن فرنچائز کی پرانی یادیں اور دشا پڑھنی کی موجودگی، جبکہ دوسری طرف سنی دیول، پریتی زنٹا اور راج کمار سنتوشی کی بڑی تاریخی فلم۔ اب یہ سوال یہ ہے، کیا آوارہ پن 2 واقعی بلاک بسٹر بننے کی طرف جا رہی ہے، اور کیا ہفتے اور اتوار کو اس کی کمائی مزید کئی گنا بڑھ سکتی ہے؟ چلیں پوری باکس آفس کہانی سمجھتے ہیں۔ آوارہ پن 2 کی کہانی کیا ہے؟ دراصل 2007 میں آنے والی مشہور فلم آوارہ پن باضابطہ آوارہ پن 2 دوسری کڑی ہے۔ پہلی فلم میں عمران ہاشمی نے شیوم پنڈت کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو جرم کی دنیا میں رہتے ہوئے اندر سے شدید جذبات تکلیف کا شکار تھا۔ پہلے فلم کی سب سے بڑی خاص بات اس کی محبت کی کہانی، قربانی، جذباتی گہرائی اور شیوم پنڈت کا درد بھرا کردار تھا۔ اسی کردار کی کہانی کو آگے لے کر آتی ہے آوارہ پن 2۔ اس مرتبہ شیوم پنڈت کی ایک بار پھر جرم اور خطرے کی دنیا میں واپس آتے ہیں، لیکن اس کے سامنے ایک نیا مشن ہے۔ کہانی میں ایکشن، جرم، محبت، دھوکہ اور خود کو بدلنا اور قربانی سب کچھ شامل ہے۔ شیوم پنڈت کی نئی جنگ ایک ایسا کردار ہے شیوم پنڈت میں آوارہ پن 2 جو اپنی ماضی زخموں سے ابھی تک مکمل طور پر باہر نہیں نکل سکا۔ اس کے اندر پرانی یادیں بھی ہیں اور اپنی زندگی کے فیصلوں کا بوجھ بھی، لیکن اب اس کے سامنے ایک ایسی صورتحال آتی ہے جو اسے دوبارہ جرائم کی دنیا میں داخل ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس بار معاملہ صرف اپنی جان بچانے کا نہیں بلکہ دوسروں کو بچانے کا بھی ہے۔ ایک انسانی اسمگلنگ کے گروہ کے خلاف مشن شیوم میں داخل ہوتا ہے، اور اسی مشن کے دوران اس کی ملاقات دشا پڑھنی کے کردار زارا سے ہوتی ہے۔ زارا اور شیوم کے درمیان تعلق فلم کی جذباتی پہلو کو آگے بڑھاتا ہے۔ شیوم یہ تعلق صرف محبت تک محدود نہیں رہتا بلکہ اندر موجود جذبات کو دوبارہ سامنے لے آتا ہے۔ ایکشن اور جذبات کی بہترین امتزاج۔ آوارہ پن 2 میں ایک طرف عمران ہاشمی پر اثر کردار ہے اور دوسری طرف جرم اور لڑائی میں مبنی کہانی۔ فلم میں بینکاک کے مقامات، لڑائی کے مناظر اور پس پردہ موسیقی خاص اہمیت دی گئی ہے۔ ناقدین کے مطابق فلم کا پہلا حصہ خاص طور پر ایکشن رفتار عمران ہاشمی کے کردار کی وجہ سے ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کچھ ناقدین نے عمران کی اداکاری کو فلم کی سب سے بڑی طاقت قرار دیا ہے، جبکہ دوسری حصے کے رفتار اور اختتام کے حوالے سے کچھ تنقید بھی سامنے آئی ہے۔ یعنی فلم کو مکمل طور پر بہترین رد عمل نہیں ملا، لیکن عمران ہاشمی کی اداکاری اور آوارہ پن کی پرانی یادوں نے ناظرین کو بڑی تعداد میں سنیما گھروں تک پہنچایا ہے۔ اصل مقابلہ آوارہ پن 2 اور بٹوارہ 1947۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے باکس آفس مقابلے کی طرف۔ 14 اگست کو آوارہ پن 2 اور سنی دیول کی بٹوارہ 1947 ایک ہی بڑے یوم آزادی والے ویکینڈ میں سنیما گھروں میں آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ فلم ریلیز سے پہلے ایڈوانس بکنگ میں بھی آوارہ پن 2 کو واضح برتری حاصل تھی۔ رپورٹس کے مطابق آوارہ پن 2 نے ایڈوانس بکنگ میں بٹوارہ 1947 سے تقریباً 7 کروڑ زیادہ کا کاروبار کیا تھا، اور پھر جب 14 اگست کو دونوں فلموں نے سنیما گھروں میں اپنا سفر شروع کیا تو فرق مزید واضح ہو گیا۔ پہلے
दिन की आवारापन 2 की कमाई। अब बात करते हैं असल नंबर्स। आवारापन 2 ने पहले दिन भारत में तकरीबन 22.50 करोड़ नेट का कारोबार किया। कुछ बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मजमूई कमाई तकरीबन 26 से 27 करोड़ आसपास बताई गई है, जबकि बहरीन से तकरीबन 2.2 करोड़ की कमाई रिपोर्ट हुई है। इसी तरह दुनिया भर में पहले दिन की कमाई तकरीबन 29 करोड़ के आसपास बनती है। यानी इमरान हाशमी ने बहुत मजबूत शुरुआत की है। ये इमरान हाशमी की सोलो फिल्मों की करियर की सबसे बड़ी पहली दिन की ओपनिंग भी बताई जा रही है। सनी देओल की बंटवारा 1947 का क्या हाल रहा। दूसरी तरफ सनी देओल की बंटवारा 1947 भी बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन पहले दिन उसे आवारापन 2 की तरफ से सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंटवारा 1947 ने पहले दिन भारत में तकरीबन 5.75 करोड़ का कारोबार किया। यानी आवारापन 2 ने पहले दिन सनी देओल की फिल्म को तकरीबन 4 गुना के करीब फर्क से पीछे छोड़ दिया। ये इस फिल्म के मुकाबले की सबसे बड़ी बात बन गई है। क्या आवारापन 2 ब्लॉकबस्टर बनेगी? दोस्तों यहाँ एक अहम बात समझाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पहले दिन की कमाई देखकर किसी फिल्म को बाज़ाब्ता तौर पर ब्लॉकबस्टर नहीं कहा जा सकता। इस फैसले के लिए हमें फिल्म का बजट, फिल्म की तकसीम पर होने वाला खर्च, सिनेमा घरों से मिलने वाला हिस्सा और पूरी फिल्म की मजमूई कमाई और दूसरे हुकूक से होने वाली आमदनी को भी देखना होता है। लेकिन आवारापन 2 की शुरुआत ने एक ज़बरदस्त साबित कर दिया है कि फ़िल्म नाजरीन की मजबूत दिलचस्पी मौजूद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ़िल्म ने एक बड़े मुकाबले के बावजूद तकरीबन 22.5 करोड़ की भारत में नेट ओपनिंग की। ये बहुत मजबूत शुरुआत है। हफ्ता यानी आज क्या होगा। अब आते हैं हफ्ते के दिन की तरफ। 14 अगस्त जुम्मा था और 15 अगस्त हफ्ता को यौम आज़ादी छुट्टी भी है, इसलिए हफ्ते को आवारापन 2 का बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल है। अगर जुम्मे के मुकाबले में नाजरीन का रद्द-ए-अमल मजबूत रहता तो कमाई बहुत बड़ा इजाफा आ सकता है। ताज़ा सैटरडे के अदम-ओ-शुमार में फिल्म ने 30 करोड़ का हिस्सा अबूर करने की रफ्तार दिखाई है और एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मजमूई कमाई तकरीबन 34.60 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। यानी सैटरडे के दिन कमाई में वाज़ह इजाफा नज़र आ रहा है। इसलिए ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि सैटरडे को आवारापन 2 की कमाई पहले दिन के मुकाबले में काफ़ी बेहतर होने का इम्कान मजबूत है। क्या सैटरडे की कमाई डबल हो सकती है? अब आपको सवाल का सीधा जवाब। अगर पहले दिन की कमाई तकरीबन 22.50 करोड़ है तो असल डबल कमाई के लिए हफ्ते को तकरीबन 45 करोड़ की कमाई करना होगी। ये मुमकिन तो है, लेकिन इसे अभी पक्का या यकीनी नहीं कहा जा सकता। फिल्म की कमाई 100% इजाफा बहुत बड़ा इजाफा होता है, लेकिन यौम आज़ादी की छुट्टी सैटरडे का दिन और मजबूत नाजरीन का रद्द-ए-अमल की वजह से फिल्म की बहुत बड़ा फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। संडे को क्या होगा? संडे भी आवारापन 2 के लिए बहुत अहम होगा। अगर सैटरडे को फिल्म के सिनेमा घरों में नाजरीन की तादाद मजबूत रहती है, लोगों का रद्द-ए-अमल अच्छा रहता है, तो संडे को भी बहुत अच्छी कमाई आ सकती है। एक बेहतरीन सूरत-ए-हाल में फिल्म फ्राइडे मजबूत शुरुआत, सैटरडे बड़ी छलांग, संडे मजबूत वीकेंड दे सकती है। अगर ये रुझान बरकरार रहा तो आवारापन 2 अपने पहले वीकेंड में बहुत बड़ा मजबूत कारोबार कर सकती है। वीकेंड का मुकम्मल नतीजा अगर हम सिर्फ मौजूद रुझान की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाएं तो पहला दिन तकरीबन 22.50 करोड़, दूसरा दिन छुट्टी की वजह से बड़ी तरक्की, तीसरा दिन संडे मज़ीद मजबूत कमाई। इस सूरत में पहले वीकेंड की भारत में नेट कमाई बहुत ज़बरदस्त सतह तक पहुंच सकती है, लेकिन याद रखें ये सिर्फ अंदाज़ा है, इतनी सरकारी कमाई नहीं। असल कमाई सिनेमा घरों, नाज़रीन की तादाद, शोज, टिकट कीमत और लोगों के रद्द-ए-अमल के मुताबिक तब्दील हो सकती है। आवारापन 2 की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरे ख्याल में आवारापन 2 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ रेशा पटनी नहीं, इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इमरान हाशमी प्लस शिवम पंडित प्लस आवारापन की पुरानी यादें। 2007 की आवारापन सिनेमा घरों में बहुत बड़ी तजारती कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन वक्त के साथ ये इमरान हाशमी की यादगार फिल्मों में शामिल हो गई। इसकी मौसीकी, जज्बाती कहानी और शिवम पंडित का किरदार आज भी नाज़रीन को याद है। इसी वजह से दूसरी कड़ी के लिए
पहले से ही जज्बाती ताल्लुक मौजूद था और अब 19 साल बाद शिवम पंडित की वापसी ने मुद्दाओं को दोबारा सिनेमा घरों तक पहुंचा दिया है। इमरान हाशमी की वापसी आवारापन 2 के लिए इमरान हाशमी की ओपनिंग खास अहमियत रखती है, क्योंकि एक वक्त में इमरान हाशमी बॉलीवुड के बड़े सितारों में शुमार होते थे। आवारापन, जन्नत, मर्डर, वंस अपॉन ए टाइम, मुंबई, राज और दूसरी फिल्मों के जरिए उन्होंने अपने लिए एक मजबूत मुद्दाओं का हल्का बनाया। अब आवारापन 2 के जरिए उनका एक पसंदीदा किरदार दोबारा बड़े पर्दे पर वापस आया है और पहले दिन के नंबर बता रहे हैं कि नाजरीन ने इस वापसी को नज़रअंदाज नहीं किया। दिशा पटनी का क्या किरदार है? दिशा पटनी के किरदार में ज़ारा फिल्म में दिशा पटनी के किरदार नजर आती है। उनका किरदार शिवम की नई जज्बाती कहानी में अहम किरदार अदा करता है। अगरचे कुछ नाक़दीन का यह भी कहना है कि ज़ारा और शिवम के ताल्लुक़ को मज़ीद गहराई दी जा सकती थी, लेकिन दिशा की मौजूदगी ने फिल्म को तजारती कशिश ज़रूर दी। मौसीकी और पुरानी यादें आवारापन सिलसिले की एक ख़ास पहचान इसकी मौसीकी भी रही है। 2007 वाली आवारापन के गाने आज भी नाजरीन में मकबूल हैं। आवारापन 2 ने इसी पुरानी यादों को इस्तेमाल किया है, यानी नाजरीन सिनेमा घरों में सिर्फ नई कहानी देखने नहीं जा रहे, बल्कि वो शिवम पंडित की पुरानी जज्बात को दोबारा महसूस करने भी जा रहे हैं। ये दूसरी कड़ी के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। आवारापन 2 बमुकाबला बंटवारा 1947 फातह कौन होगा? पहले दिन की नंबर को देखा जाए तो जवाब काफी वाज़ेह है। आवारापन 2 फातह। आवारापन 2 ने तकरीबन 22.50 करोड़ भारत नेटवर्किंग के साथ बड़ी बढ़तरी हासिल की है, जबकि तकरीबन बंटवारा 1947 तकरीबन 5.75 करोड़ पर रही। यानी पहले दिन आवारापन 2 ने इस मुकाबले में वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली है, लेकिन बंटवारा 1947 के पास भी पूरा वीकेंड मौजूद है। इसलिए हितमी फैसले के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। क्या आवारापन 2 ब्लॉकबस्टर बन सकती है? अब सब अहम बात। हाँ, आवारापन 2 के ब्लॉकबस्टर बनने के इम्कानात ज़रूर मजबूत हुए हैं, लेकिन अभी इससे बाज़ाब्ता तौर पर ब्लॉकबस्टर कहना जल्दी होगी, क्योंकि फ़िल्म की पूरी ज़िंदगी की कमाई अभी सामने नहीं आई। फिल्म अगर सैटरडे और इतवार की कमाई बड़ा इजाफा होता है तो मंडे के बाद भी फिल्म मजबूत रहती है, तो फिर ब्लॉकबस्टर के फैसले की तरफ बात मजबूत हो जाएगी। ख़ास तौर पर अगर मंडे के बाद भी फिल्म अच्छी कमाई बरकरार रखती है तो समझाएं कि नाजरीन ने फिल्म को पसंद कर लिया है। अगर आवारापन 2 का सैटरडे और संडे की कमाई मजबूत रहती है तो फिल्म के लिए वीकेंड बहुत बड़ा साबित हो सकता है, और अगर मंडे को भी कमाई अचानक बहुत बड़ी गिरावट नहीं आती तो फिल्म तवील अरसे में बहुत अच्छा कारोबार कर सकती है। इस वक्त सबसे अहम चीज़ सैटरडे को नाज़रीन की तादाद, संडे को नाज़रीन की तादाद, मंडे को कमाई का बरकरार रहना, ये 3 नंबर फैसला करेंगे। आवारापन 2 सिर्फ बड़ी पहले दिन की कमाई वाली फिल्म बनती है या वाकई ब्लॉकबस्टर बनकर सामने आती है। आखिरी बात, आवारापन 2 ने 14 अगस्त को सिर्फ सिनेमा घरों के एक यादगार इमरान हाशमी दाखिला नहीं लिया, बल्कि दोबारा जिंदा कर दिया। शिवम पंडित को दोबारा जिंदा कर दिया है। किरदार शिवम पंडित को दोबारा जिंदा कर दिया है। एक तरफ इमरान हाशमी और दिशा पटनी के आवारापन 2, दूसरी तरफ सनी देओल की बंटवारा 1947। लेकिन पहले दिन की फिल्म मुकाबला में है आवारापन 2 ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली है। पहले दिन की तकरीबन 22.50 करोड़ बहुत भारत नेट और दुनिया भर में तकरीबन 30 करोड़ के आसपास कमाई रिपोर्ट हुई है, और सबसे नाजरीन सैटरडे और इतवार पर हैं। सबकी नज़रें सैटरडे और संडे पर हैं। अगर सैटरडे और संडे को कमाई बहुत ज़्यादा इजाफा होता है तो आवारापन 2 बहुत जल्द एक बड़ी फिल्मी कामयाबी से ब्लॉकबस्टर के दौर में दाखिल हो सकती है। अब आपको क्या लगता है कि आवारापन 2 भारत में 100 करोड़ नेट का हिस्सा पार करेगी, या इमरान हाशमी की शिवम पंडित वाली फिल्म सनी देओल की बंटवारा 1947 को पूरी फिल्मी सफर में पीछे छोड़ देगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बॉलीवुड की रोज़ाना बॉक्स ऑफिस खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।